Hello friends, myself Anushri Soni, Assistant Professor Mechanical Engineering. Today we will discuss about cluster analysis, that what cluster analysis is and strategies used in cluster analysis. So let's start with what cluster analysis is. Cluster analysis एक unsupervised learning है. अब सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग होती क्या है, पहले वो देख लेते हैं कि अगर हमने मॉडल को जनरेट किया है तो मॉडल जनरेशन के पहले अगर मैं वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ और मुझे पहले से पता होता है कि कौन सा वेरिएबल किस ग्रुप में जाएगा, तो वो सुपरवाइज लर्निंग कहलाएगी हमारी. लेकिन एट द रन टाइम अगर मुझे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल किस ग्रुप में जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाएगी. सो क्लस्टर एनालिसिस इज़ अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग. इसमें हमें रन टाइम पे पता चलता है कि हाँ, ये वेरिएबल इस ग्रुप में जाएगा. एंड वॉट क्लस्टरिंग इज़, क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, जो गिवन हमें डेटा सेट होता है और गिवन हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, और वो जो ग्रुप कहलाते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, वो मेरे क्लस्टर्स कहलाते हैं. So cluster analysis is the task of grouping a set of objects in such a way that objects in the same group are more similar to each other than those in other groups. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम एक पॉपुलेशन लें और उसमें हम दो ग्रुप बनाएं, वन मेल एंड वन फीमेल. सो यहाँ पे जो मेरे दो ग्रुप बन गए हैं, वन मेल और वन फीमेल का, ये क्या कहलाएगा, मेरा क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2. क्लस्टर 1 इज़ ऑफ मेल एंड क्लस्टर 2 इज़ ऑफ फीमेल. It is the main task of exploratory data mining and a common technique for statistical data analysis. इसे हम बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैटर्न रिकग्निशन, इमेज एनालिसिस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटा कंप्रेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड machine learning. So it is used in various fields. This is an example. Here all the data points are scattered and they have some similarity. That similarity is same color recognition or same color. Some are of red color, some of a green color and some are of blue color. So I made clusters here. So blue color is cluster 1, that is group 1, which have all the datas which have blue color. Cluster 2 is of green color, that means it has all the variables that have green color. Cluster 3 is of red color, that means it have all the variable or data points that are red in color. So in this form we will classify all these components in some groups according to some similarity. Now clustering is of two types, hard clustering and soft clustering. So let's see what it is. In hard clustering, each data point either belongs to a cluster completely or not. But in soft clustering, instead of putting each data into a separate cluster, a probability or likelihood of that data point to be in those cluster is assigned. एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने क्या पढ़ा हार्ड क्लस्टरिंग में कि डेटा पॉइंट आइदर बिलोंग्स टू अ क्लस्टर कम्प्लीटली और नॉट, या तो वो डेटा पॉइंट क्लस्टर से बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा. देयर इज़ नो एनी प्रोबेबिलिटी. In first example, that is hard clustering, all the circular elements belong to the cluster 1 and all the triangular elements belong to the cluster 2. If a object or data is of circular form, then it belongs to cluster 1. If it in elliptical form, it does not belong to cluster 1. And if a data or variable is in triangular form, then only it belongs to cluster 2. In soft clustering, there is some probability. Like in cluster 2, we have all the circular objects, but in cluster 1, we have circular as well as triangular objects. Because in soft clustering, instead of putting each data point into a separate cluster, a probability or likelihood of that data point to be in those cluster is assigned. Their probability works. So there are some clustering algorithms. There are many clustering algorithms, but these are important ones. Partitioning method, hierarchical method, density based method, grid based method, model based method and constraint based method. Let's see. Partitioning method, as the name suggests, here we partition the objects. Here we have n objects, total objects, and जो हमें पार्टीशन करने हैं कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं वो हमें पहले से स्पेसिफाई होता है. लाइक वी हैव k पार्टीशन इन द डेटा. सो वी आर गिवन अ डेटा बेस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास जो डेटा बेस है वो n ऑब्जेक्ट्स का है, लेकिन हमें उसमें पार्टीशन कितने करने हैं,
के पार्टीशन करने हैं, और ईच पार्टीशन हमें क्या बताएगा, वो बताएगा हमें कि वो क्लस्टर है। के शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n. It means that it will classify the data into k groups which satisfy the following requirements. इसकी क्या requirements है देख लेते हैं. Each group contains at least one object and each object must belong to exactly one group. हर एक ग्रुप में, हर एक क्लस्टर में एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए मेरे एक ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट है, वो पांचों सिर्फ उस ही ग्रुप से रिलेटेड होने चाहिए, किसी भी अदर ग्रुप से रिलेटेड नहीं होने चाहिए. इसका जो एक एग्जांपल है वो के मीन्स क्लस्टरिंग है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. ना हायरार्किकल मेथड्स, हियर हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, लेकिन ये डिकम्पोजिशन का बेसिस क्या होता है, हायरार्की होता है. हायरार्किकल डिकम्पोजिशन करते हैं गिवन डेटा ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन इसमें हम दो अप्रोचेस अपनाते हैं, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच. ये होते हैं जो 2 टाइप्स के अप्रोचेस होते हैं, एग्लोमरेटिव अप्रोच और डाइवर्सिव अप्रोच. इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, बिर्च एंड क्योर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग. नाउ फर्स्ट इज एग्लोमरेटिव अप्रोच. एग्लोमरेटिव अप्रोच को हम और क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं. इसका आप सीधा सीधा सा मतलब ये समझिए कि हमने स्कैटर्ड डेटा को सिर्फ एक क्लस्टर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डेटा पॉइंट जो है स्कैटर्ड है. हम बॉटम अप अप्रोच कर रहे हैं, मतलब हम नीचे से चलते हुए आ रहे हैं, उनको कुछ ग्रुप्स बनाया, फिर कुछ वेरिएबल्स को उस ग्रुप में ऐड किया, फिर कुछ वेरिएबल्स को उसमें ऐड किया, और एट लास्ट हमने सारे वेरिएबल्स को एक ही ग्रुप में ऐड कर लिया, एक ही क्लस्टर में ऐड कर लिया. सो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड डेटा इनटू अ ग्रुप्ड डेटा. What is the divisive approach? Divisive approach is top-down approach. Here we decompose a cluster into scattered data. हम क्या करते हैं, given object का डेटा सेट है, हमको गिवन डेटा सेट है जो कि एक ग्रुप के अंदर है, हम क्या करेंगे, उसके क्लस्टर फॉर्म करते जाएंगे. कब तक करते जाएंगे, जब तक कि उसके छोटे छोटे क्लस्टर्स फॉर्म नहीं हो जाते. ये एक आइटरेटिव अप्रोच है, इसमें हम आइट्रेशन करते रहते हैं जब तक कि क्लस्टर, छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर स्प्लिट नहीं हो जाता. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं. ये जो मेथड होता है ये रिजिड होता है. जब आपने एक बार मर्जिंग कर ली तो इट विल नेवर बी अनडन. एक बार मर्जिंग कर ली, एक बार आपने स्प्लिट कर दिया है उनको, तो वो वापस से आपके स्प्लिट जो होंगे वो एक साथ ग्रुप नहीं होंगे. डेंसिटी बेस्ड मेथड. डेंसिटी बेस्ड मेथड में क्या होता है, हमें पहले से डेंसिटी डिफाइंड होती है. जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी ग्रुपिंग करनी है, लेकिन ग्रुपिंग के अंदर मुझे मेंबर्स कितने रखे हैं, 3 रख रहे हैं, तो वो जो 3 है दैट इज़ द डेंसिटी. वो हमको क्या होती है, दी जाती है. 3 से ज़्यादा हम रख सकते हैं, लेकिन 3 से कम हम नहीं रख सकते हैं. मतलब क्लासिफिकेशन करना है ग्रुप्स के अंदर एंड डेंसिटी इज़ 3, तो हर एक ग्रुप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, 3 ऑब्जेक्ट्स आने ही चाहिए. 3 से कम नहीं आएंगे, 3 से ज़्यादा हम रख सकते हैं. इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, डीबी स्कैन एंड ऑप्टिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेंसिटी बेस्ड मैथड. सो ग्रिड बेस्ड मैथड में हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का ग्रिड फॉर्म करते हैं. ग्रिड मतलब रॉ एंड कॉलम्स में उसको अरेंज करते हैं कि जितने भी अरेंज डेटा होते हैं क्वेंटाइज्ड फॉर्म में होते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसका जो मेजर एडवांटेज होता है वो फास्ट प्रोसेसिंग टाइम. अगर हमारे पास अरेंज्ड डेटा होगा तो हम उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा ईजी कर सकेंगे. इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच डायमेंशन इन द क्वांटाइज्ड स्पेस. इसके एग्जाम्पल्स क्या है, स्टिंग, क्लिंक एंड वेव क्लस्टर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रिड बेस्ड मॉडल्स. मॉडल बेस्ड मेथड्स आर, इसमें क्या होता है कि हम एक मॉडल पहले से हाइपोथेसाइज करके रखते हैं. हाइपोथेसाइज करके रखते हैं मतलब कि अगर हमारा डेटा सेट या हमारे क्लस्टर इसके अंदर फिट होते हैं तो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर फिट नहीं होते हैं तो हम उस हाइपोथेसिस को नल कर देंगे. जैसे कि हम किसी भी कास्टिंग की बात करते हैं, तो कास्टिंग में मान लीजिए हमने पहले से एक सांचा बनाया हुआ है, हम किसी भी मूर्ति को ले रहे हैं या किसी भी हमारी बनाई हुई कास्टिंग को ले रहे हैं, उस कास्टिंग को उसके अंदर मोल्ड के अंदर हम रख के देखेंगे. हमने कास्टिंग को मोल्ड के अंदर रख कर देखा, इफ़ इट फिट्स द मॉडल, दैट इज़ अवर कास्टिंग विल फिट द mold, then we will accept it. But if it does not fit that mold, then we will reject it. तो ऐसे ही हम यहाँ पे पहले से स्पेसिफिक मॉडल बना के रखते हैं. अगर वो क्लस्टर्स उस मॉडल को फिट कर देते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वी डिड नॉट एक्सेप्ट इट. अवर नेक्स्ट इज कॉन्स्ट्रेंट
बेस्ड मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स बना देते हैं। वो जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो यूज़र के इनकॉर्पोरेशन के लिए होते हैं या फिर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब मुझे क्या क्या एप्लीकेशंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, और मुझे मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लस्टर्स बना दिए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड मेथड बोलते हैं। उन क्लस्टर्स जो हमने कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे क्या करती हूँ, क्लस्टर्स बनाती हूँ। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम के मीन्स क्लस्टरिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ पार्टीशनिंग मेथड। थैंक यू।